Hello, friends. Can I ask you a very simple question? Why are the organizations are moving their applications to cloud? They are eagerly migrating their applications, workloads, services to cloud. So, can you explain me what is the reason why applications are not running properly on the on-prem environment? So, can anyone answer about this question? Please think. Okay, so you are not sure. Okay, so let's come with me. I will answer all these questions and I will explain each and everything with great real time examples so that you can understand it and relate it with the problems of the on prem environment. So, friends, thank you so much and welcome to my YouTube channel Cloud Success. Our today's topic is what are the benefits of Azure Cloud? And I am Manish. So, before moving to the our topic, let me give you my brief introduction. I am Microsoft certified Azure solution architect expert and I am in this industry more than 18 years now. I have been involved in development of the new cloud native applications, enhancements and migrating on-prem applications to the Azure cloud. I have cleared multiple Azure certifications in different areas of the Azure cloud. So that's all about myself and now let's move to the topic. So guys, हम लोग सुन चुके हैं कि क्लाउड is now the option. Everyone is moving their applications to cloud. Organizations are looking or developing new applications in the cloud. So what are the point? What are the advantages? And what are the disadvantages of the on-prem environment? So we have to understand all those things very clearly, and we have to understand all these facts with some examples, with some real-time examples that industries are facing actually, right? So let me start with our first advantage that we call is the scalability. For example, there is an e-commerce website that is experiencing a significant increase in the traffic during holiday seasons. So let's assume कि एक e-commerce website है and it is running 5 overall the year. लेकिन जब हमारा कोई फेस्टिवल आता है या कोई हमारा हॉलीडे सीजन्स आता है या कोई वीकेंड है या कोई स्पेशल इवेंट है तो अचानक से इस वेबसाइट का लोड बहुत बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अभी मे बी इस वेबसाइट पे दे आर अराउंड 1 lakhs ऑफ यूजर्स बट whenever there is sales, whenever there is a festival time or holiday season, the sale increase to the 10 lakhs of users, right? So problem is that अभी ऑन प्रीम में अगर हमारे पास अभी मे बी वी हैव 10 servers, then during this sudden hike 10 servers are not able to manage the load. So प्रॉब्लम आती है कि 10 servers हमारा वो लोड मैनेज नहीं कर पाते। अब उस केस में अगर हमारी एप्लीकेशन ऑन प्रीम में चल रही है तो देन वी हैव टू अरेंज इमीडिएटली few more servers, maybe 10 more servers or 20 more servers, whatever, depending on the varying load. बट यू कैन अंडरस्टैंड अगर हमें ऑन प्रीम में कोई सर्वर नया लाना है उसके लिए हमें वी हैव टू फॉलो सम प्रोसेस, हमें प्रोसेस से निकलना होगा जहाँ पे हम अपनी रिक्वायरमेंट हम अपनी रिक्रूटमेंट टीम को देंगे, देन दे विल अरेंज द सर्वर्स, देन वी विल buy the softwares, then we will install everything on those servers, and finally then those servers will be available for our website, right? So overall this whole process will take some time. It is not a real time process कि आज हमें सर्वर की जरूरत है तो हमें आज immediately servers available हो जाएंगे। तो this is the issue कि whenever we need immediate servers we cannot manage in the on prem. In contrast, if we go to the cloud says आपके पास अभी 2 सर्वर है या 4 सर्वर है, आपकी एप्लीकेशन पे अभी लोड बढ़ता है, देन यू वी कैन प्रोवाइड यू सर्वर्स इमीडिएटली। इमीडिएटली मीन्स इन फ्यू सेकेंड्स, इन फ्यू मिली सेकेंड्स ऑफ द टाइम, राइट? सो अभी मेरे पास 10 सर्वर है क्लाउड में, इमीडिएटली मे बी माई लोड इज इंक्रीज बिकॉज देर इज ए सेल्स रनिंग ऑन माई वेबसाइट and I need 10 more servers. So what I will do, I will auto scale, I will set a feature of the cloud auto scale to 10 servers, और जैसे ही मेरा लोड 1 lakhs होता है immediately Azure will provide 10 more servers with all the application configurations.
And after that, when my sale is ended, what I will do, I will again reduce those servers to my original servers, maybe back to the 10 servers. So that way I was able to get the benefit of my servers or infrastructure, और मुझे सेल्स में मेरे यूजर्स, आई वॉज नॉट losing my users because my application was continuously running with all the coming load, right? So क्लाउड ने सबसे बड़ा बेनिफिट दिया कि बिजनेसेस को, कि उसने कहा कि आपको जितने सर्वर्स चाहिए आई विल गिव यू दैट टाइम इमीडिएटली, और आपका जो भी फेस्टिवल, जो भी आपकी सेल्स चल रही हैं ड्यूरिंग दोस टाइम, आपकी वो इम्पैक्ट नहीं होगी और यू विल जनरेट द रेवेन्यू. So it was a very big advantage for the industries compared to the on-prem environment where we were struggling to add few more servers within the given time period, right? So scalability is very big feature of the cloud. First thing. Now coming to the cost efficiency. अब अगर आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, मे बी एनीथिंग, कोई टीवी, कोई फ्रिज, कुछ भी, वॉशिंग मशीन, आपका पहला क्वेश्चन ये होता है क्या कॉस्ट है, कितने की पड़ रही है, राइट? या आप कोई भी सर्विस लेते हैं, आप कैब बुक करते हैं या आप कोई फ्लाइट बुक करते हैं, कुछ भी, एनी सर्विस यू बाय, आपका पहला कंसिडरेशन होता है कि इसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है. अगर कोई फ्लाइट बुक कर रहे हैं, इसका टिकट कितने का पड़ रहा है, मॉर्निंग टाइम में कितने का टिकट है, इवनिंग टाइम में क्या टिकट है, फेस्टिवल टाइम पे. सो वी बेसिकली कंसिडर cost obviously for all our services, right? Similarly, अगर मेरी एप्लीकेशन अभी ऑन प्रीम चल रही है एंड देन क्लाउड कम्स और सेज if you move our service to cloud and we will give you some benefits of the costing, so definitely हम लोग क्लाउड पे जाना चाहेंगे. तो how does cloud give this type of benefits? क्लाउड सेज अगर आपके पास अभी 2 सर्वर चल रहे हैं क्लाउड में, आपको 2 सर्वर एक्स्ट्रा चाहिए, मे बी ओनली फॉर 1 वीक ऑफ टाइम, बिकॉज आपकी कोई सेल्स या आपका कोई ऑफर चल रहा है, देन व्हाट वी विल डू, हम आपको 2 सर्वर्स 1 वीक के लिए देंगे. देन वी विल चार्ज ओनली फॉर दोज 2 वीक्स. दैट इज पे एज यू गो मॉडल. जितना आप यूज करते हैं हम आपसे केवल उतना ही चार्ज करेंगे. देन आप अपना बाकी सर्वर नॉर्मली जितना यूज करते हैं उतना कंटिन्यू रखें. लेकिन अगर हम वापस ऑन प्रीम इन्वायरमेंट में जाएं, वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास अभी 2 सर्वर्स हैं, अभी हमारी एक सेल आने वाली है नेक्स्ट वीक, तो उसके लिए हमें पता है कि हमारा लोड अभी यहाँ पे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स होने वाला है वॉल्यूम, तो हमें 2 या 3 सर्वर एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होंगे. तो ये 2 या 3 सर्वर्स हमें पहले से ही अरेंज करके रखने होंगे, हमें इनको परचेज करना होगा, इनको सेटअप करना होगा, सब कुछ करके हम 3 सर्वर्स में खरीद लेते हैं और उनको हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करते हैं. दैट इज गुड. बट व्हाट हैपन्स, जैसे ही आपकी सेल एंड होती है, आपका जो वॉल्यूम है यूजर का वो वापस नॉर्मल पे आता है, तब आपके ये 3 सर्वर बिकम्स टोटली आइडियल. दीज सर्वर्स आर ऑफ नो यूज. बट वाट एवर कॉस्ट, जो भी पैसा आपने इनको खरीदने में लगाया है, वो आपका दैट विल बी टोटली वेस्टेज, बिकॉज दीज सर्वर्स हम अब इनको यूज नहीं कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली मेरे को 3 4 4 सर्वर ऐड करने में जो कॉस्टिंग आई है ओनली फॉर 1 वीक ऑफ टाइम, दैट इज टोटली वेस्टेज. तो नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी पर्सन है, if that will consider cost, so why it will continue with the on prem, it will go to the cloud, because cloud saying आप कितने भी सर्वर्स कितने भी टाइम के लीजिए, हम आपसे केवल उतना ही कॉस्टिंग लेंगे, राइट? सो दैट इज अगेन ए वेरी बिग बेनिफिट इन द क्लाउड, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक स्टार्टअप सॉफ्टवेयर कंपनी है और उसने अपना एक नया एप्लीकेशन लॉन्च करना है. अब I am a startup. I don't have that much of funds. I am not sure about the success of my application. So what I will do, rather than I will create or buy few servers, I will create one data center, I will hire one person to manage all those things. I will go to the simply cloud. In cloud, I will take one simple server. I will deploy my application. I will public that application, and I will see the responses. अगर मुझे अच्छे response मिलते हैं, then I will continue and I will increase my volume or servers. Otherwise, I can roll back and I will no, I will pay to the cloud and I will come back, right? So ऑन प्रीम में मुझे जो सर्वर्स खरीदने का एक प्रेशर था, या जो सर्वर मैंने खरीदे हैं जस्ट फॉर कि ये एप्लीकेशन चलेगी या नहीं चलेगी, दैट इज अननेसेसरी कॉस्ट. बट क्लाउड गिव यू अपॉर्चुनिटी that you come to the cloud
try your application. If it is a success, then you can continue. If it is a failure, then you can come back. So this is a very, very good flexibility, and also it is saving the cost of your organization of your company, right? Second thing, third thing is the global reach and availability. अब मेरा एक डेटा सेंटर है, मैंने ऑन प्रीम में मैंने अपनी कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय की हुई है, मेरी कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, उसके यूजर्स नॉट ओनली इन इंडिया, दे आर users from across the globe, UK, US, European countries, and other countries as well, right? Now problem is, if I am continuing with my local data center, then जितने भी यूजर्स मेरे across the globe available हैं, they will feel there is a great latency while accessing these applications, because मेरा data center locally India में deployed है और मेरी application access हो रही है across the globe. तो जितनी भी ग्लोबल यूजर्स हैं उनको लेटेंसी का इशू आएगा. So this is again a very big problem. If there is a very critical financial application, or there is maybe some media-based application where I'm watching some movies, some clips or videos, and there is a buffering or streaming because my users is sitting in the US or my movie is basically deployed or stored in some data center in India. So there is a lots of latency or time that will take to stream that movie to the global users, right? Again, this is a very big problem, and cloud comes again and says, hey, look, we have multiple data centers. We are not working from one particular data center. We have numbers of data center present across the globe. So if your users are from across the globe, we will provide you data centers as near to them. So अगर मेरा यूजर यूएस में है या यूके में है, then I will deploy my application in those regions. और जब my user will access those application, it will see it's a real time experience. The latency will be very, very low, right? So that's way I am giving a very good customer experience to all my global users, right? So this feature is not available or is a drawback in the on-prem environment. Also, we have seen sometimes it is not possible we keep all our applications in the cloud. You can ask that what happens. For example, I am having a healthcare or maybe financial application. क्या मैं उस फाइनेंशियल एप्लीकेशन को कंप्लीटली क्लाउड में मूव कर सकता हूँ? क्या मेरा डेटा वहां पर सेव रहेगा? मे बी समटाइम्स कुछ दे आर सर्टेन कंप्लायंसेस विच सेज कि आपका जो भी डेटा है वो कुछ पर्टिकुलर रीजन में या कंट्री में ही रहना चाहिए. क्या उस केस में मैं अपनी एप्लीकेशन को क्लाउड पे माइग्रेट कर सकता हूँ? Again, cloud comes and says, yes, you can do it. We have a hybrid capabilities. That means अगर आपकी एप्लीकेशंस हैव सर्टेन कंप्लायंस कि आप अपने डेटा को अपने रीजन से बाहर नहीं सेव कर सकते हैं या क्लाउड पे नहीं भेज सकते हैं, देन वी हैव द हाइब्रिड अप्रोच. इन दिस अप्रोच आप अपनी एप्लीकेशन का क्रिटिकल पार्ट जो भी है, लाइक डेटा और एनी अदर थिंग, यू कैन कीप दो सेंसिटिव डेटा in your on-prem environment, and you can move your non-sensitive data or workloads to the cloud environment. Why in the cloud? Because आपका जो नॉन क्रिटिकल एरिया है एप्लीकेशन का, वो क्लाउड के जो फीचर्स हैं, स्केलेबिलिटी या परफॉर्मेंस या आपका मल्टीपल रीजन्स या अवेलेबिलिटी, उनका यूज कर सके और आपकी एप्लीकेशन का जो कंप्लाइंस है वो भी आपका मेंटेन रहे. तो दैट वे क्लाउड आल्सो वर्क वेरी सीमलेसली in the hybrid environment, where some part of your application is running from the cloud and other part is running from the on-prem, right? So that way we have cloud provides the hybrid capability as well. Now we come to the very important part, what is the disaster recovery and business continuity. सो नॉर्मली अगर मेरी एप्लीकेशन मेरे एक डेटा सेंटर में रन हो रही है, मे बी इन इंडिया इन ए पर्टिकुलर सिटी, मे बी इन बॉम्बे, इन पुणे, इन बैंगलोर, एंड आई हैव मल्टीपल सर्वर्स, देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स. फर्स्ट थिंग, आपका जो सर्वर्स हैं वो क्रैश कर जाते हैं ड्यू टू एनी रीजंस, देन आपकी एप्लीकेशन कैसे कंटिन्यू होगी? हाउ विल यू कंटिन्यू योर एप्लीकेशन? Maybe there is some natural disaster, for example, earthquake or flood or anything.
due to that your data center is totally out of control, totally failed. What will you do in that cases? You have certain very critical application, banking, financial applications, आप कैसे मैनेज करेंगे? This is the very important factor, and it all your reputations depends. Like if your application is down, how will you manage? It will definitely impact your reputation as well, right? So आइदर देर इज ऑप्शन कि आप अपने ऑन प्रीम इन्वायरमेंट में एक और डेटा सेंटर बनाए, क्लाउड उसको मैनेज करें, बट दिस इज अगेन ए वेरी वेरी कॉस्टली थिंग, राइट? एंड इट इज नॉट दैट मच मैनेजेबल, राइट? Then cloud again come and says, yes, we have the options to provide you the disaster recovery and business continuity thing, right? So, for example, a financial service company needs a reliable disaster recovery plan in case their primary data center experience a failure by setting up a secondary site in Azure that can replicate critical applications and data, ensuring minimal downtime and data loss in the event of a disaster. उस केस में अगर आपका एप्लीकेशन क्लाउड में डिप्लॉयड है, मे बी इट इज इन द ईस्ट यूएस डेटा रीजन में या डेटा सेंटर में कोई प्रॉब्लम आती है, मे बी कोई डिजास्टर है, मे बी एनी पावर फेलियर है, एनी रीजन, देन आपका डेटा और की एप्लीकेशन कंटिन्यूअसली रेप्लिकेट होती है आपके पेयर्ड रीजन पे, दैट इज वेस्ट यूएस. एंड इन केस ऑफ डिजास्टर immediately your data or application will migrate or switch to the your alternate region, and your application will continue to run from that region, right? So that way basically user will not feel any downtime and it will continue to work. So that is a very great feature for your critical applications, right? सो अभी तक हमने जितने भी चीजें डिस्कस की हैं, फॉर एग्जांपल स्केलेबिलिटी, जिसमें हम देखते हैं कि हमें जितने सर्वर्स चाहिए हमें उतने सर्वर्स मिल रहे हैं. दूसरा हमने देखा कॉस्टिंग वाला पार्ट, कि जितनी हमें सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है हम केवल उतने ही मनी हम क्लाउड को दे रहे हैं, या क्लाउड इज चार्जिंग ओनली दैट मच मनी जितना हम सर्वर्स यूज कर रहे हैं, यानी कि पे एज यू गो. दैट इज अ वेरी गुड फ्लेक्सिबिलिटी. उसके अलावा हमने देखा कि हमारे रीजन्स अवेलेबिलिटी हमारी हाई है क्लाउड में. उसके अलावा वी हैव थिंक दैट वी हैव आल्सो हाइब्रिड अप्रोच. सो ऑल दिस थिंग्स वर बेसिकली रिलेटेड टू द एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस रिलेटेड, कि एप्लीकेशन आपकी चलती रहे, कुछ मे बी स्केलेबिलिटी वाइज, अवेलेबिलिटी वाइज, और रिलेबिलिटी वाइज, और कॉस्टिंग वाइज. नाउ अब अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ, मे बी आई एम बाइंग वन स्मार्टफोन, राइट? या मैं, मेरे पास अभी कोई पुराना स्मार्टफोन है, देन आई एम गोइंग टू द न्यू वर्जन ऑफ मे बी स्मार्टफोन. सो इट इज व्हाट विल डू, स्मार्टफोन विल हैव ऑल द बेसिक फीचर्स एज वेल एज जो भी नया मॉडल आएगा उसमें कुछ नए फीचर्स या नई कुछ सर्विसेज डेफिनेटली होंगी, राइट? तो आई विल डेफिनेटली यूज द न्यू सर्विसेज. सिमिलरली क्लाउड कहता है कि ठीक है, आपकी ऑन प्रिम की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी हम उनको सही करते हैं, उनको करेक्ट करते हैं, उन पे वर्क करते हैं, साथ साथ हम आपको वी विल आल्सो प्रोवाइड यू वेरियस न्यू फीचर्स है आल्सो, जैसे कि एआई एंड एनालिटिक्स. सो एआई एंड एनालिटिक्स का जो फीचर है, क्लाउड प्रोवाइड दोज फीचर्स, राइट? So, for example, your application is running in the cloud and you want to get the data inside कि मेरी अभी एप्लीकेशंस कितने यूजर्स यूज कर रहे हैं, किस एरिया में यूज हो रही है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स हो रही है. तो ये सब जो एनालिटिक है या जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग फीचर्स हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ एप्लीकेशन में, एज्योर प्रोवाइड ऑल दोज न्यू एडवांस सर्विसेज. सो अगर मुझे कोई नई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, आई वांट टू यूज दोज फीचर्स, आई कैन डायरेक्टली गो टू एज्योर क्लाउड, और एज्योर क्लाउड में जाके मैं ये नए फीचर्स यूज कर सकता हूँ. तो दिस इज आल्सो वेरी गुड थिंग, राइट? For example, a manufacturing company uses Azure Machine Learning to analyze sensor data from their production line. By applying machine learning algorithms, they can predict and prevent equipment failures, optimize production process, and reduce maintenance costs. क्या मतलब हुआ कि अगर मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मे बी मेरी कंपनी कार्स बना रही है, तो मैं सेंसर्स यूज कर सकता हूँ हर मशीन पर, और वो सेंसर्स मुझे डेटा पास करते रहेंगे. और जब भी सेंसर्स को फील होगा कि ये मशीन हॉट हो रही है या इट्स डूइंग सम नॉइज, इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, इट विल
send some notifications, and due to that notifications, जो भी मेरा वहाँ पे इंचार्ज होगा, plant in charge, it will immediately take the actions, it will correct the things, and that way it will basically avoid any type of machine failure, and it will also reduce the maintenance cost. So ये सब चीजें हम लोग Azure के जो नए फीचर्स आ रहे हैं लाइक एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग, इसके थ्रू या सेंसर्स के थ्रू हम कर सकते हैं, राइट? Also, Azure is not only giving services, is also helping developers to increase their productivity. It also providing lots of tool. For example, Azure offers tools and services that streamline application development, testing and deployment, promoting collaboration and faster time to market. क्या मतलब हुआ? अभी मुझे कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, अभी कस्टमर से कोई रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे एक महीने में कोई नया फीचर या कोई नया प्रोडक्ट मुझे लॉन्च करना है, मुझे उसके लिए एप्लीकेशन इमीडिएटली चाहिए। वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि एक महीने में पूरी एप्लीकेशन को एंड टू एंड कंप्लीट रेडी करके डिप्लॉय करना, राइट? सो व्हाट हैपेंस हियर, Azure again comes and have those services which will help basically to develop, deploy, test our services in very minimum time. So क्या features हैं? For example, Azure says we have the Azure DevOps. Azure DevOps means DevOps has the pipelines through which we can develop quickly. We can integrate our coding to the main production line. Then we can basically uh, test it immediately once everything is tested, and then it can quickly go to the test environment, and then automatically it will go to the production line. So all this process is going through with the DevOps tool through the CI/CD pipelines, continuous integration and continuous deployment. So the things जो कि पहले बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी चीज़ें डेवलप करने में, डिप्लॉय करने में, टेस्ट करने में, वो चीज़ें अब हमारा ऑटोमेट हो गया है डेवऑप्स के थ्रू, और इट विल टेक हार्डली फ्यू डेज ऑफ टाइम टू, कोई भी नई रिक्वायरमेंट आती है, कोई भी नया फीचर आता है, उसको डेवलप करके टेस्ट कर कर प्रोडक्शन में भेजने में इट विल टेक वेरी लेस टाइम, एंड इट ऑल इज ऑटोमेटेड. सो ये टूल्स आर आल्सो प्रोवाइडेड बाय द Azure, राइट? Also, very major concern of organizations or people is about the security and compliance. People says अगर हम अपनी एप्लीकेशंस या डेटा को क्लाउड पे भेजते हैं, इज इट सिक्योर? बिकॉज हमारे डेटा सेंटर में या हमारे घर में कोई चीजें हम, वी कैन अंडरस्टैंड इट इज सेफ, लेकिन अगर हम उसको क्लाउड पे भेजते हैं तो डेफिनेटली वी हैव द कंसर्न्स. So cloud has so many implemented so many things, it's so many tools or workforce to ensure that यूजर का जो भी डेटा क्लाउड में या एप्लीकेशन जो भी क्लाउड में आ रही है वो कंप्लीटली सिक्योर रहे, या जो भी हमारे कंप्लायंसेस हैं ऑर्गेनाइजेशंस के वो हमारे मीट हो, राइट? तो फॉर एग्जांपल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस must comply with strict data protection regulations, right? With leveraging Azure's encryption and compliance features, they can securely store customer financial data and maintain compliance with industry regulations. मेरा जो भी डेटा कंप्लाइंट, जो भी डेटा क्लाउड पे जाता है, क्लाउड इंश्योर की वो इंक्रिप्टेड है, जो भी डेटा मेरा मूव कर रहा है या एक्सेस हो रहा है इन बिटवीन इन ट्रांजिशन स्टेट, वो इंक्रिप्टेड रहेगा, जो डेटा मेरा डिस्क पे सेव होगा वो भी इंक्रिप्टेड रहेगा, राइट? और इट विल इंश्योर कि कोई भी उस डेटा को एक्सेस, जब तक कि उसके पास परमिशन ना हो उसको एक्सेस ना कर सके. सो cloud ensure lot of security features, lot of security parameters, through that it ensures कि nobody, no outsider can access the your data, right? अब हम अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड यूज करते हैं, तो देन देयर इज ए वन मोर बेनिफिट कि क्लाउड माइक्रोसॉफ्ट की जो अदर सर्विसेज या अदर प्रोडक्ट्स हैं हमें उनको भी यूज करने में या इंटीग्रेट करने में इजी हो जाता है, बिकॉज सिंपली यार ऑलरेडी हमारे पास क्लाउड के सर्वर्स हैं, क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम है या क्लाउड की एप्लीकेशंस हैं, और हम चाहते हैं कि वी वांट टू यूज द क्लाउड माइक्रोसॉफ्ट 365 or other products, so we can easily integrate all those in our application. So अगर मेरी कोई एप्लीकेशन है उसको मेल भेजनी है, then I can immediately integrate Microsoft 365 and I can use the Outlook feature, and through that I can easily send some mails to the
रिक्वायर्ड पर्सन। सो दिस इज अगेन ए बेनिफिट कि मुझे ऑन प्रीम से क्लाउड में जाना है तो जो मेरी फीचर्स या जो मेरी सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट की ऑलरेडी मैं अभी यूज कर रहा हूँ वो क्लाउड में जाके भी कंटिन्यू इजीली इंटीग्रेट हो जाएंगी, राइट? So that already explained that Microsoft Office 365 for collaboration and productivity can easily integrate their Azure application with the existing Office 365 environment. Also, advanced features we talk about like Azure Kubernetes services and like we have this type of features also where for example a gaming company wants to create a new multiplayer online game, they can use the Azure Community Service to deploy and manage game servers, allowing them to quickly iterate and release new features. So we have this type of features or innovations also, right? Analytics and insights I already discussed during our AI tool, and also we have this particular features कि हमारी कोई ई कॉमर्स की साइट है जहाँ पे हमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर एरिया की सेल्स को देखना है तो हमारे पास क्लाउड में देयर आर लॉट्स ऑफ एनालिटिक्स एंड इनसाइट टूल्स अवेलेबल। थ्रू दैट हम हमारी जो भी सीनियर मैनेजमेंट है उनको बता सकते हैं कि हमारी किस एरिया में किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी सेल्स या रिक्वायरमेंट है, सो दैट वो अपना प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लाइन अकॉर्डिंगली अरेंज कर सके, स्टॉक अकॉर्डिंगली अरेंज कर सके और उस पर्टिकुलर फीचर को ज़्यादा प्रमोट कर सके, राइट? सो these features are also available as a services in the Azure. Also, cloud is giving offering some new features like IoT, Internet of Things. Internet of Things is what? बेसिकली जो हमारी डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल हमारा फ्रिज है, हमारा वॉशिंग मशीन है, ये हमारा घर है। आजकल आपने देखा होगा एक डिजिटल होम चलता है। डिजिटल होम का मतलब है कि आप कहीं बाहर अपने शहर से बाहर हैं लेकिन आप डिजिटली अपने घर से कनेक्टेड हैं, जिसके थ्रू आप अपने घर का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, अपनी पूरी सिक्योरिटी सब कुछ मैनेज कर सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड थ्रू सम एप्लीकेशंस, सम मोबाइल एप्स, राइट? सो दिस इज द IoT डिवाइसेस। सो वहाँ पे बेसिकली कुछ डिवाइसेस, कुछ सेंसर्स होते हैं जो आपके घर में इंस्टॉल्ड हैं। दोज विल कंटिन्यू टू सेंड सम नोटिफिकेशंस और मैसेजेस टू द एप्लीकेशन, और वहाँ से आप अपने पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? So IoT things are again a very advanced features which are currently in use, or Azure provides uh, Azure IoT services as well, right? So friends, बेसिकली अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो दिस टॉपिक इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। पहले पार्ट में हमने देखा कि एजोर हमें क्या बेसिक चीजें दे रहा है जो कि हमें ऑन प्रीम में हम या कोई भी एप्लीकेशन हम बनाएंगे वी हैव टू लुक फॉर एग्जांपल उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, उसका स्केलेबिलिटी क्या होगा, वो कितना रिलायबल होगी, उसकी सिक्योरिटी कैसे होगी, कितनी कॉस्ट आएगी इस एप्लीकेशन की। तो ये एप्लीकेशन चाहे हमारी ऑन प्रीम में रन हो चाहे क्लाउड में, हमें ये सब चीज़ें हमेशा देखनी ही होंगी। और किसी भी तरह की एप्लीकेशन, चाहे वेब एप्लीकेशन, चाहे डेस्कटॉप, चाहे मोबाइल, चाहे एपीआई सर्विस, हम हमेशा कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में तो ये 4-5 फीचर नॉर्मली हम सोच के चलते ही हैं कि अगर मेरा कस्टमर का लोड बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या होगा, अगर मेरा एक सर्वर फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे 4 सर्वर और ऐड करने पड़ेंगे तो कॉस्टिंग कितनी जाएगी, अगर 4 सर्वर मुझे अभी आइडल रखने पड़ेंगे तो मेरी कॉस्टिंग क्या जाएगी, मेरे डेटा का क्या होगा, मेरे कंप्लायंस का क्या होगा, राइट? तो ये सब चीजें हम सोचते हैं और क्लाउड इन सब चीजों के लिए आपको बेटर अप्रोच प्रोवाइड करता है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आता है आपके एडवांस फीचर्स। क्लाउड कहता है कि ठीक है, आप जब आप क्लाउड पे आ रहे हो तो ठीक है, हम इन सब चीज़ों के अलावा आपको नई चीज़ें भी, नई सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को आप सीधे क्लाउड में डेवलप करो। कैसे? यूजिंग द एजोर क्यूबरनेटिस सर्विस, जहाँ पे आपको ऑटोमेटेड पूरा क्यूबरनेटिस सर्विस का एनवायरनमेंट मिलता है। देयर यू कैन हैव मल्टीपल नोड्स, मल्टीपल क्लस्टर्स, मल्टीपल सर्वर्स, और अपनी एप्लीकेशन को वहाँ पे डिप्लॉय कीजिए एंड देन AKS विल मैनेज ऑल दोस थिंग्स, ठीक है? या फिर एजोर आपका बेसिकली आपको प्रोवाइड करता हैगा एआई वाले फीचर्स, जहाँ पे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स बन रहे हैं, आपको एनालिटिक्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको डेटा कलेक्शन के दे रहा है। तो ऑल डेटा, ऑल दिस थिंग्स आर एडवांस फीचर्स जो कि क्लाउड आपको देता है, ताकि आप जब अपनी एप्लीकेशन एक नई डेवलप कर रहे हो तो आप सीधा क्लाउड पे जाएंगे और क्लाउड की इन सर्विस को यूज करेंगे। तो दिस इज द अगेन एन एडवांटेज। और थर्ड थिंग इज अबाउट योर डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड योर डिप्लॉयमेंट थिंग्स, कि आप अपनी एप्लीकेशंस को क्विकली कैसे डेवलप करें, कैसे मैनेज करें, कैसे इन चीज़ों को इफेक्टिवली फटाफट मार्केट में लॉन्च करें। फॉर एग्जांपल मेरा कस्टमर है, कस्टमर बेसिकली
टाइम इज द मनी। अगर मुझे कोई नया फीचर लाना है तो जितनी जल्दी मैं नया फीचर लेके आऊंगा उतनी जल्दी मैं मार्केट में उसको बेनिफिट ले पाऊंगा।